Okay, so good evening, everyone. So now we will be starting with our session. So first of all, like we are very sorry for starting the session very late because we've been waiting for other participants to come as well. So from Jagrati Foundation, I would like to welcome each one of you, and I hope that each one of you is also doing well during this quarantine as well. So I'd like to mention one thing is that we all often face one very major problem is that we can't often decide our career, what we should be doing right in future. For example, I'll give you an example. When I was in class 12th, I was very confused, like as to what should I be doing and what should I not be doing. So with this, I would like to start on with the session. So Jagrati Foundation offers career guidance programs and also other special guidance services which you can avail within Delhi NCR as well. So I'll start by giving a gist about this session, like what this all career series will be about. So this career series will be divided into 4 sessions. Session number 1 will be on career planning and preparation. Like we are often confused as to how to prepare, and the other aspects of it will be discussed in this session number 1. And then there will be next session number 2, which is information relating to colleges, admissions, and other processes as well. And then in third session, we'll be covering issues faced during journey of one's own during career. And fourth session will be in career and psychology. And one more thing is that we are also adding one more session for those who wish to go to abroad. So for them, we have got fifth session. And if you've got any question to ask, like any question relating to career, you can just ask in the chat window and we'll soon get back to you. And I'll also be sending a feedback form which you could fill. So I'll quickly introduce you towards our new speakers. So our first speaker is Ms. Nishtha Khungar. So Nishtha Khungar is a progressive educator and has been associated with psychology background for last 10 years. She has been a university topper in University of Delhi. She's a certified counselor from NCERT and Ministry of Social Justice and Empowerment. She specializes in career guidance programs, mental health programs, and providing special educational services to the society. Her work involves around orientation workshops for students as well, and she's a founder director of Jagrati Foundation, and she's been awarded for excellence as a counselor in Career Hackathon 2020 organized by National Career Counselor Network. And then we have then we have amongst us our very own of our own age, Mr. Gavish Trehan, who is an admission counselor at Pratham Test Preparation Center and provide counseling to the students who are in class 10th, 11th, 12th to choose streams for their career options. He's a graduate in Bachelor's of Commerce from University of Delhi. He got awards from Mahindra Club and wanted to be an entrepreneur, and he's working actually very hard on this. He's a foodie, music lover, and a person with whom you'll feel like a family. So now let us quickly move on to our next speaker. So I would like to pass on the mic to Ms. Nishtha Khungar, and let's see what she has to hear. Over to you, Nishtha, ma'am. Thank you so much, Shubham, for this lovely introduction which you have given today. And I welcome all of you, the complete audience which is today, and being a part of this career session of Jagrati Foundation. I welcome each one of you. Thank you for your participation, and we will be catering the audience, whosoever will be welcomed in this session one by one. So moving on to today's session, that is on career planning and path to success, as we have divided this series into 5 sessions. And reason being here is, the sessions have to be very much valuable and informative for all of you. So I'll be not wasting a minute. I'll be straight away coming to the topic of career planning and career की असल में ये career है क्या. हम लोग जब भी करियर के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ी चीज आती है नौकरी, जॉब. कि करियर का मतलब है जॉब, मैंने एक चीज पढ़ी और उसके बाद मुझे जॉब मिल जाए. लेकिन अगर हम अपना एक ग्राफ देखें स्टार्टिंग से तो आई थिंक when I was in 11th or when I was in 12th, my focus came into psychology. but उससे पहले मैं सोचती थी 8th 9th के अंदर कि मुझे डॉक्टर बनना है. लेकिन बचपन में मुझे ब्यूटिशियन, सैलून, पार्लर्स इनका बहुत शौक था. बट व्हाट आई हैव रियलाइज कि जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, मेरे करियर, मेरे शौक, मेरे एक्सपीरियंसेस सब कुछ मेरे change होते गए and I had a different viewpoint. So what I'm trying to make you understand here is कि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं अपनी एज के अंदर, जैसे जैसे एज आप क्रॉस करते हैं, आपके करियर में भी चेंजेस आते हैं. सो करियर इज अ प्रोसेस. करियर एक दिन का काम नहीं है. करियर एक प्रोसेस की तरह है जिसके अंदर आप
हर मोड पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, कुछ ना कुछ बैकअप प्लान लेते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, एंड मोर ओवर इट डजंट स्टॉप एट द ओल्ड एज, you learn at that point also. So career is a long process जिसके अंदर job एक छोटा सा factor है, job एक छोटी सी चीज है, where we actually focus upon. So I think more could be covered by Gavish, and he'll tell you, in a more better way as the experienced and the youngest speaker we have today. So over to you, Gavish. थैंक यू निष्ठा, थैंक यू फॉर द वंडरफुल स्टार्ट. फ्रेंड, मेरा नाम गविश है. बाकी मेरे बारे में शुभम ने बताया दिया होगा. तो हम प्लानिंग और पाथ के बारे में आज बात करेंगे. प्लानिंग और पाथ का सिंपल सा एक मंत्र है, गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश. मतलब वो एक काश बन के रह जाएगा कि जब आप 40-45 के होगे तो आप सोचो कि यार मेरा वो गोल था बट मैंने उसके लिए प्लान नहीं करा, काश मैं कर लेता. तो वो काश ना बने आपकी जिंदगी में, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे. तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है. सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब अपने आप को एग्जामिन करना, अपनी एक्टिविटीज को एग्जामिन करना, अपनी हॉबीज को जानना कि आपको क्या करना पसंद है. क्योंकि अक्सर हमारी हॉबीज ही हमें फ्यूचर का पाथ देते हैं, फ्यूचर करियर का पाथ हमारी हॉबीज ही देते हैं. आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द जो भी यूथ है या जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने करियर के स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी हॉबी से करते हैं. इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा. पॉल गॉगिन्स एक मशहूर पेंटर है. वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बट वो एक इंस्पायर हुए एक आर्टिस्ट से कि क्योंकि उनकी हॉबी भी पेंटिंग थी तो उन्होंने अपनी करियर को पेंटिंग में चेंज करा. और ऐसा नहीं कि उन्होंने बिजनेस में नहीं अच्छा करा, उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं था. जब वो बिजनेस पे जाते थे वो बोर हो चुके थे काफी के 9 to 8 अपने ऑफिस में जाके बैठना, कलीग से मिलना, मीटिंग्स करना, वही बोरिंग सी जिंदगी हो गई थी. कोई इंटरेस्ट नहीं था उस काम में करने में. तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट के बेस पर अपना करियर स्टार्ट करा और वो पेंटर हैं आज, और उन्होंने अपने बिजनेस में भी काफी अच्छा करा था. सेकेंड हमारा होता है गोल सेटिंग. देखो जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लेते हैं ना, उसमें हमें ये तो पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए, बट वो कैसा चाहिए, किस लेवल पे चाहिए, उसके लिए हमें गोल सेट करने पड़ते हैं. और जब हम गोल सेट कर लेते हैं तो उसमें ये देखो कि ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को अगर आईफोन 128 GB चाहिए तो सिर्फ इतना ही गोल है. उसके कुछ रेलेवेंट्स होते हैं गोल को लेने, कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ टाइम बाउंड होते हैं जो हमें राइट डाउन करने होते हैं. और ऐसे नहीं राइट डाउन करके आपने सिर्फ एक वॉल पे लगा दिया कि हाँ वो लगा हुआ है, हम रोज उसको देख रहे हैं, वो अपने आप हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं. वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, को-वर्कर्स के साथ. आपको इनके साथ नहीं डिस्कस करना होता है, क्योंकि एक छोटी सी एडवाइस भी बहुत आगे आपके काम आ सकती है फ्यूचर में. अब कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जो ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हमने अपना प्लान शेयर कर लिया तो जो हमारा दोस्त होगा उसने या रिलेटिव उसने हमारा जो स्टार्टअप है वो कवर कर लिया, तो हम क्या करें. देखो अगर उसने आपका स्टार्टअप लिया और उसने अगर आपका स्टार्टअप कवर करा तो उसने अपने इंटरेस्ट से नहीं करा. आप जो करोगे वो पैशन से करोगे, अपने पैशन से करोगे स्टार्ट, तो आप अच्छा कर पाओगे. सो अपना जो है करियर स्टार्ट करो तो डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, राइट डाउन करने बहुत जरूरी है. और ओवर टू यू निष्ठा मैम, बाकी आप अच्छे समझा पाएंगे. That's wonderful, Gavish. I think तुमने बहुत अच्छा पॉइंट कवर किया है कि आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए. इंटरेस्ट पता है आपको तो अपने गोल के बारे में काम करो. Children, and if we have bigger audience also, we all know कि अगर हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो हम कभी भी अपना करियर उसमें मेंटेन नहीं कर पाते. हम कभी भी वो चीज करेंगे ही नहीं, हमें मजा ही नहीं आएगा, हमें शौक ही नहीं आएगा कि हम उसको उस पर ध्यान भी दें. So when I talk about career as a counselor, so we keep in mind कि काउंसलिंग के अंदर जब हम किसी बच्चे या कोई 10th का हो, 12th का हो या कोई भी हो, जब भी हम काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं और करियर के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट की बात करते हैं. अगर उसका शौक है, उसका इंटरेस्ट है, उसके साथ साथ हम उसकी जनरल एबिलिटीज पे बात करते हैं, जिसके साथ हम उसकी स्पेसिफिक एबिलिटीज पे वर्कआउट करते हैं. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मान लीजिए मेरे को ब्लड से डर लगता है, आई एम हीमोफोबिक सपोज, एंड आई वांट टू बी अ डॉक्टर, but I have an interest to pursue my career in medical. But if I see I have a problem of blood, how can I be a doctor? Because that is the a basic requirement that I have to be with the bodies and physiological mechanisms and the blood and everything. So it's very important. If you have an interest with that, you need to have general abilities. फिर जब हम ये दोनों किटर कर देते हैं तो हम फिर स्पेसिफिक एबिलिटीज पे जाते हैं जो हम 12वीं के बाद बच्चों को बताते हैं करियर असेसमेंट्स के थ्रू, करियर टेस्टिंग के थ्रू, जो कि सब साइंटिफिक है. साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का यूज करते हैं जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है, कौन सा बेटर है, या आपको इसके बाद अगर आप ये नहीं कर पाते तो इसके बाद आपके बैकअप प्लान्स क्या है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज
प्लान बनाना भी इम्पोर्टेंट है और प्लान को एग्जीक्यूट करना भी इम्पोर्टेंट है। और अगर उसके अंदर एक इंटरेस्ट की गुत्थी मिल जाए या एक इंटरेस्ट का शौक मिल जाए तो वो बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन एंड एवरीवन, यू नो, इंटरेस्ट एंड जनरल एबिलिटीज make it to specific abilities, and it's very important when you're focusing upon something in your career, whatever you're doing. So there you need to focus upon the interest as well as the general abilities and then your specific abilities. And the next session would be on the similar thing, जिसके अंदर हम आपको जितने भी आपके, आप चाहे साइंस से हैं, आप ह्यूमैनिटीज से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, हर तरीके के कॉलेजेस, हर तरीके की स्ट्रीम्स के बारे में विद द एंट्रेंसेस और हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी विद अ न्यू स्पीकर. And I think you will cater the information, but with that you need to understand कि plan बनाना बहुत important है. And I think Gavish can explain you better in the upcoming thing. So over to you, Gavish. थैंक यू निष्ठा मैम. अब मैम ने जैसे ही कहा कि हमें एक उसके लिए प्लान बनाना बहुत जरूरी है, तो थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है. एक प्लान हमें डेवलप करना होता है. आपको अपने इंटरेस्ट पता चल गया, आपको अपना गोल पता चल गया, आपको अपने स्किल्स के बारे में जब पता लग जाए तो हमें उसको ना प्लान के लिए डिग करना बहुत जरूरी है और स्टार्ट फिगरिंग आउट कि हमें आगे क्या चाहिए. क्योंकि आप बिना किसी उसके राइट डाउन, किसी भी अपने इंटरेस्ट जानने के बिना, किसी गोल सेट के बिना कि प्लान उसका कोई बना नहीं सकते, राइट. एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा. रमेश बाबू, आप में से किसी बहुतों ने लिखा होगा, OMG ये मेरे इंडिया पे आए थे. मतलब वो बेंगलोर के सबसे रिचेस्ट हेयर ड्रेसर है. मतलब वो इकलौता हेयर ड्रेसर है पूरी इंडिया में जो 3.2 करोड़ की रॉयल्स रोज सिल्वर गोस्ट पे आता है कटिंग का. और उनकी कटिंग की कॉस्ट सिर्फ 75 रुपीज है. तो उन्होंने वो रॉयल्स रॉयस कैसे ली? उनको अपना एक पैशन था कि उनको गाड़ियों का पैशन था. जो सैलून का बिजनेस है उनके फादर ने स्टार्ट किया था, वो फैमिली बिजनेस था, बट उनको एक गाड़ियों का पैशन था. तो उन्होंने देखा सैलून से बिजनेस के मैं गाड़ियां नहीं ले सकता. तो उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी फर्स्ट कार परचेज करी. So it seems that we are having some connection issues over to Gavish's side. Okay, so I'll continue this. Gavish was actually focusing upon कि there was a person in Bangalore that was Ramesh Babu, जिनका interest तो सलून और हमेशा cutting और इसमें ही रहता था. So Gavish was actually trying to explain कि कैसे आपका जो interest होता है, आप जब आप planning करते हो, उसे execute करते हो, how you work on it, right? But what I will cater here is कि मैं तो आपको जरूर ये बोलूंगी कि अगर बच्चों आप 10th के अंदर हो या आप 9th के हो या फिर आप 11th के हो या फिर आप 12th में हो और यू आर इन कॉलेज, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप करियर के बारे में बात करते हो, हर चीज साइंटिफिक और लॉजिकल वे में काम करो. व्हाट आई मीन बाय साइंटिफिक एंड लॉजिकल इज, टेस्टिंग पे जरूर मैं जोर डालूंगी कि आप साइकोमेट्रिक टेस्टिंग और साइकोमेट्रिक टूल्स का यूज करिए, जिससे पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए अच्छी है. अगर आप 9th या 10th में है, अगर आप एक स्ट्रीम ऑप्ट कर चुके हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि 11th 12th के बाद हमें हमेशा होता है कि मैं DU जाना चाहती हूँ बट मैं इतनी पढ़ने में तेज नहीं हूँ, या फिर अगर मैं पढ़ने में अच्छी हूँ बट मेरे को कुछ और करना है लेकिन मैं वो कर नहीं सकती. क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते. सो देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ conflicts and frustrations that we personally feel whenever we try to do something. So what I am trying to tell you or explain here is कि career assessment plays a very important role. असेसमेंट एक बेसिक पॉइंट है. जब आप असेस करते हो किसी को तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि इसके पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है. जब हमें वो पता चलता है उसके बाद हम एक स्टेप ऊपर जाते हैं, एंड दैट स्टेप इज कि हम आपको आपकी स्पेसिफिक एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली ऑप्शंस बता सकते हैं कि देखिए या तो आप ये कर लीजिए, अगर आप ये नहीं तो आप कर सकते हैं, अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो आप ये कर सकते हैं. इस तरीके से जब हम आपको ऑप्शंस पे कवर करते हैं बच्चों, देन वी गेट टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आपके पास ये सारी चीजें हैं, आप इसमें से चूज कर लीजिए दैट व्हाट सूट्स यू द बेस्ट. And from there you can have a particular goal, a particular plan. With that you can have a backup plan which plays a very important role. जैसे हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम मैं ना 80-90 वाला बच्चा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं ना DU भी जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं DU ना जा पाया तो फिर मेरा इंटरेस्ट और किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं है, फिर मैं NDA के लिए जाना चाहता हूँ. Right? Can you see the division? If you want like that, but for that you don't have a percentage. If not, then what? So you have to, what I'm trying to make you understand, nothing is difficult.
आपको अपने बैकअप प्लान पे वर्क करना पड़ेगा, और बैकअप प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब जानने के लिए, ये समझने के लिए कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर एज. So I think that with this, Gavish would like to add on to something in this, which he left because of his network issues. Yeah. So over to you, Gavish. सॉरी फॉर द नेटवर्क इशू. तो मैं प्लान के बारे में बता रहा था कि हमें एक प्लान बनाना बहुत जरूरी है. अब हो सकता है आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए हो कि हाँ हमें इस मार्केट में जाना तो है, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दो चीजों के बीच में चॉइस नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने दो करियर पाथ हैं, तो हम दोनों में से किस पे जाएं. तो उसके लिए आपको ना सिंपल एक एमटीटी प्रिपेयर करना होता है. एमटीटी का मतलब होता है एक लिस्टिंग होती है जिसमें फर्स्ट आता है कि एक प्रॉफिट और एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाइए आप दोनों करियर्स के, दोनों को इवैल्यूएट करिए अपने वैल्यूज के साथ कि वो कैसे अलाइन होते हैं, और दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के देख के चलिए किसमें मेरे को ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है या किसमें मेरे को काफी लॉस भी हो सकता है आगे जाके, किसमें रिस्क जाता है. तो अपने फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को सोचना बहुत जरूरी है. अब आज जब करियर के बारे में सोचो तो आप क्या सोचते हो कि मैं अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर स्टार्ट करना चाहता हूँ, या मैं आज से ही अपनी जर्नी शुरू करना चाहता हूँ, कि मैं आज से ही अपना चेंज लाना शुरू करना चाहता हूँ. तो आपको वो सोचना बहुत जरूरी है. थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट फाइंडिंग योर इंटरेस्ट. सिंपल सा तरीका है, जस्ट रिफ्लेक्ट, सेट गोल्स एंड डेवलप अ प्लान. यू विल फाइंड योरसेल्फ ऑन द राइट पाथ. अब कुछ हमारे पास जैसे 10th 11th या 12th के भी स्टूडेंट्स होंगे, तो वो लोग ये सोच रहे हैं यार ये चीजें तो कॉलेज के बाद सोचने वाली हैं या जॉब जब शुरू हो जाए तब सोचें. ऐसा कुछ नहीं है. जब आप अपनी आफ्टर 10th कंप्लीट करने के बाद स्ट्रीम्स भी सिलेक्ट करते हो तो उसमें सोचते हो आपके यार मैं कॉमर्स लूंगा तो आगे कॉलेज में जाके मेरे को बीकॉम या बीबीए करनी पड़ेगी, या मैं साइंस लूंगा तो मुझे बीटेक करनी पड़ेगी. आर्ट्स लेके हो सकता है मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं. आपको वो चीज में आप सोचते हो, अपना इंटरेस्ट खिलाते हो कि हाँ मेरे को उसमें एक इंटरेस्ट है. गोल मैंने सेट करा, मैंने प्लानिंग करी कि मेरे को अगर मैं कॉमर्स लेता हूँ तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करनी है, तो उसके लिए मेरे को कितनी परसेंटेज चाहिए, टाइम बाउंड्स लिखे, रेलेवेंस लिखे. तो आप वो सब भी करते हो, वो भी आपका एक करियर का ही पार्ट है. तो आपको वो सब करना भी बहुत जरूरी है. अब कुछ मेरे पास ऐसे होंगे सर मुझको करनी तो बीटेक है, बट पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैं कॉमर्स ले लूँ, तो मैं क्या करूँ. तो ये देखो अपने पेरेंट्स को एक उसमें समझाओ कि हाँ मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स साइड में है, नॉन मेडिकल साइड में है. मुझे पता है कि आप मेरे बारे में सोच रहे हो कि नॉन मेडिकल ले लूँ, बीटेक कर लूँ, स्कोप है. तो बट वो फिर भी ले. तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा. मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, वो कॉमर्स का स्टूडेंट था, बट उसको नॉन मेडिकल लेनी थी. पेरेंट्स ने जैसे जैसे करके उसको कॉमर्स ला दी, तो वो क्लास 12 उसने मतलब पॉइंट्स पे पास होना, 33% लाना, बैकलॉग्स आने. तो वो फ्रॉम 11th to 12th एंड वो अपने पेरेंट्स को ही ब्लेम करता रहा कि आपकी वजह से मेरे नंबर नहीं आते, आपने मुझे नॉन मेडिकल नहीं लेके दी, मुझे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी थी, आपने ही कहा मुझे कॉमर्स लो, आगे बीकॉम करो. तो वो मतलब रेडी ही नहीं था अपने पेरेंट्स की बात सुनने के लिए और कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए. तो वो हमारे पास आए, हम उन्होंने बताया कि वी आर इन अ सिचुएशन कि हमें कुछ करियर चॉइस नहीं बन पा रहा. तो हमने उससे बात करी, तो ये पता चला कि उसका एक सेकंड इंटरेस्ट भी था. सेकंड इंटरेस्ट क्या था, कुकिंग था उसका. तो हमने उसको होटल मैनेजमेंट सजेस्ट करा कि आप होटल मैनेजमेंट करिए, दिल्ली से करिए, बेंगलोर से करिए, मुंबई से, जहां आपका कन्वीनियंट है वहां से आप करिए. और अपने उस एक हॉबी को, एक हॉबी तो चलो ठीक है वो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो हम कहते कि नहीं आप दोबारा Seems like अभी की the जो सिचुएशन है उससे आप या कंटिन्यू गविश. So I think that Gavish is not able to connect with us again, unfortunately. So I'd like to pass on the mic to Nishtha, Miss Nishtha, for her final points on the subject. So over to you, Miss Nishtha. Thank you, Shubham. So, what was the conclusion basically which Kavish was actually trying is कि whenever this kind of situations happen, तो हमें कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, बट हमें उसमें से भी अपने लिए बेस्ट निकालना चाहिए. और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है कुछ भी बेस्ट निकालने के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट करें. What is basically the conclusion? So, it was basically do your self reflection, make a goal and develop a plan, which is very important. Whenever you are
focusing upon a career, और वे कोई भी चीज हो, करियर का पार्ट इन सब चीजों से जुड़कर ही बनता है. And with that, I personally feel जब मैंने अपनी starting करी थी after 12th, I have also gone for career counseling, and from there it was concluded that you can go in psychology or you can go in mass media, and these are the colleges, these are the areas where you can work. And I think I have done my best in whatever work I have taken. Also, I won't say that I have stopped here, and nobody should stop. Everybody should give a chance, should give another chance to work on it. And children, mark my words, if you focus on these kind of things, you will surely able to achieve your goal which you have marked for you, with a plan that you can develop the best for you. So that is all. And Jagriti Foundation is a foundation which has been started in Delhi and NCR region, where you can get all kind of services. The career assessment testing, psychological testing, all could be done. You all are welcomed. I think I'll over this to Shubham, and he can explain much more better for the coming sessions and the session number 2. This was just the orientation session, guys, where we just want to give you an idea of what kind of things you must take into account whenever you are doing something. But the coming sessions would be with other speakers and known unknown speakers, the renowned speakers from Delhi, and also he'll be catering the information about the each and everything related to career in the coming series. So over to you, Shubham. Thank you. Yeah, so I would like to thank Ms. Nishtha and Mr. Gavish for their valuable points in this discussion, because I personally feel that like because me being a college student myself, I also sometimes feel a lot of difficulties as to what I should be going for. For example, when I just exited my class 12th, I was very confused, like should I go for political science, geography, or any other such subject. So I think that this was a very wonderful discussion in that respect. So also, guys, I had just shared the feedback form, so I would like all of you to fill that form up and give us your feedbacks. And also, certain questions were asked during the registration, and if you have any other question, you can ask me personally, or you can message me your questions, and I'll forward those questions to the speaker. So the first question is for you, Mr. Gavish. How to understand what is your ultimate aim in life, because I haven't found any. अल्टीमेट एम इन लाइफ दो तरीके का होता है, एक करियर की लाइन में होता है और एक लाइफ की लाइन में होता है कि हाँ कि जिंदगी में मेरा अल्टीमेट एम क्या होगा, और करियर में मेरा अल्टीमेट एम, करियर का जो अभी जैसे हम करियर मॉड्यूल चल रहा है, तो करियर का अल्टीमेट एम मैं बताना चाहूंगा कि उसमें ये होता है कि आप जैसे अपने गोल्स कवर करते जाते हो, कि आपने गोल सेट करा मुझे डीयू में एडमिशन लेना है, अब डीयू के बाद आपका गोल है कि मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, सेकंड गोल आपका वो हुआ, थर्ड गोल आपका है कि मुझे सेटल होना है गुड़गांव में, एक फ्लैट लेना है। तो जैसे आपके गोल्स कवर होते जाते हैं, तो आपका जो फाइनल गोल होता है कि हाँ अल्टीमेट एम ऑफ गोल मेरा करियर में ये होगा, तो उसको हम कहेंगे अल्टीमेट एम क्या होता है। तो आपको फाइंड आउट अपने गोल जैसे आप अचीव करते जाओगे वैसे ही पता चलेगा। Yeah, so thank you, Mr. Gavish, and we've got one more question. Is that how much coaching is important? Is it beneficial? कोचिंग रिगार्डिंग इन विच इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंट्रेंस कोचिंग, तो हाँ वो जरूरी होता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं जो हमने 1st to 12th हमने पढ़े ही नहीं, मतलब जनरल अवेयरनेस उसमें होता है, ठीक है, जीके हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट एंट्रेंसेस जो होते हैं वो पूरे एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं, स्किल बेस्ड होते हैं, तो उसमें कुछ स्किल्स के सब्जेक्ट होते हैं लाइक वर्बल एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। ये बेसिकली पजलिंग के क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको करने के लिए ना हमें कुछ टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो वो टाइम मैनेज कैसे प्रोवाइड होती है, वो हमारे जो टीचर्स होते हैं, जो फैकल्टीज होती है कोचिंग सेंटर्स की, वो आपको सिखाते हैं कि कैसे हम अपना टाइम मैनेज कर सके। तो हाँ कोचिंग जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है एंट्रेंस के थ्रू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलयू और आपको टॉप एनएलयू में एडमिशन लेना और आप क्लैट या एलएच की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए कोचिंग जरूरी है। Yeah, so thank you, Mr. Gavish, for that. And now we've also got one more coaching related question, which is that how to choose the coaching center for the courses preparation. कोचिंग सेंटर्स, हाउ टू चूज कोचिंग सेंटर चूज करने के लिए आपको यही होगा, बेसिकली यही होता है कि आप कोचिंग सेंटर विजिट करते हो। हमारे जैसे पानीपत में करियर लॉन्चर, प्रथम, टाइम, तो आप तीनों ही विजिट करते हो, तीनों की फैकल्टी से मीट करते हो, तीनों से ही आप काउंसलिंग कराते हो, तो आप वो उसमें होता है कि आपको कौन ज्यादा रेलेवेंट लगता है। अगर हम कहते हैं कि हम बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ कहते हैं, उसमें वेज होते हैं, किस वे में हम बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करते हैं।
तो आपको उस वे में चूज करना होता है। Yeah, I think that's a very beautiful answer. So the next question is that what is the right age of career choice? राइट एज ऑफ करियर चॉइस तो देखो कुछ भी नहीं होता। आप निष्ठा मैम का एग्जांपल ले सकते हो, लाइफ एग्जांपल है हमारे पास। उनको सेकंड तक ब्यूटिशियन बनना था, 8th तक मेडिकल लेनी थी, 12th में आके उन्होंने साइकोलॉजी ली क्योंकि उनको बोलने का बहुत शौक है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है। तो उन्होंने देखा कि उनके करियर चॉइसेस एज के साथ हमारे करियर चॉइसेस भी चेंज होते हैं। तो आपको जैसे ही अपना इंटरेस्ट और फील्ड फाउंड हो, जैसे ही आप देखो कि हाँ मुझे ये इंटरेस्ट है इस चीज में, तो आप तभी वो सही एज है कि हाँ अब आप अपने करियर के बारे में स्टार्ट कर सकते हो। Yeah, okay, thank you, Mr. Gavish. So the next question is that how to be sure about career decisions? हाउ टू बी श्योर अबाउट करियर डिसीजन, मैंने अभी बताया था, जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो उसमें हम कुछ राइट डाउन करते हैं, कुछ टाइम बाउंड्स, कुछ मेजर्स, कुछ रेलेवेंट लिखते हैं। तो वो श्योरिटी तब मिलती है हम उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं तो हमें होता है कि हाँ अगले का फीडबैक मिलता है कि हाँ वो क्या सोचते हैं इस बिजनेस के बारे में, मुझे ये स्टार्टअप करना है, मैंने डिस्कशन करा, बट मेरे को ना कुछ 10 लोगों से मैंने डिस्कशन करा, 6 ने तो पॉजिटिव दिया और 4 लोगों ने नेगेटिव दिया, तो मेरा पॉजिटिव का रेशो ज्यादा है, तो मैं श्योर हूँ कि मैं अपना करियर स्टार्ट कर सकता हूँ, करियर डिसीजन मेरा ठीक है। Okay, so thank you again, Mr. Gavish. And the next question, which again is relating to coaching centers, is that what is the role of parents in choosing the coaching center for preparation of tests? Because my parents do not listen to me. अब देखो पेरेंट्स का रोल तो बेसिक यही होता है कि वो लोग देखते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या रेलेवेंट है, और कितने कम, अगर बुरा लगे तो सॉरी, बट कितने कम पैसों में हो सकता है। बट जहाँ क्वालिटी की बात होती है, जहाँ क्वालिटी टीचिंग होता है, वहां पे वो नहीं देखा जाता कि प्राइस टैग्स क्या लगे हुए, कि जो लोग क्वालिटी प्रोवाइड करे, जो लोग रिजल्ट प्रोवाइड करे। तो पेरेंट्स को यही एडवाइस करो कि जहाँ ठीक है चूज उन्होंने ही करना, वो मैंने माना कि ग्रेट डिसीजन उन्हीं का होगा, तो उनको बस इतना एडवाइस करो कि जब आप चूज करो मेरे लिए तो उनसे क्वालिटी ऑफ टीचिंग पूछो, क्या क्या चीज वो प्रोवाइड करते हैं और क्या उनके हिसाब से बेस्ट रहता है। Okay, so like this is the final question we have, which is that what all to focus upon if I want to pursue my career in law? व्हाट ऑल टू फोकस आपका बेसिकली तो न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ो, कि अगर आपको फोकस करना है कि आपका लॉ, क्योंकि जो क्लैट के एग्जाम होते हैं उसमें जर्नल अवेयरनेस का पार्ट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें बेसिक यही होता है कि अब तक क्या हुआ रिलेटेड टू लॉ, क्या हुआ, उसमें बहुत कम होता है कि वर्बलिटी बहुत कम पार्ट रोल प्ले करती है, लॉजिकल रीजनिंग तो ना के बराबर होता है। तो अगर आपको लॉ का पेपर करना तो आपको न्यूज हेडलाइंस के साथ साथ चलना होगा, आपको डेली करंट अफेयर्स देखने होंगे, डेली अपडेट लेना होगा, डेली अपडेटेड रहना होगा। Okay, yeah, thank you so much again, Gavish. Now we've got like one more question, which is that I remain confused and I don't know what to do. अगर आप कंफ्यूज हो तो इसका मतलब आपने पहले 2 स्टेप तो कवर कर लिए, आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लिया, आपने गोल सेटिंग कर लिया, अब आपका डेवलपर प्लान रह गया। तो उसमें मैंने बताऊँ कि आपको एक एमटीटी बनाना है। एमटीटी का मतलब होता है कि एक प्रॉफिट और एक्सपेंस की लिस्ट बनाइए, कि जो भी आप करियर चूज करोगे उनको इवेल्युएट करिए कि आपके वो जो वैल्यू है, आपका मीन है, उसके साथ अलाइन होता है कि नहीं होता। थर्ड वो कि उन दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे दोनों। तो आप बहुत क्लोज हो अगर आप कंफ्यूज हो तो। Yeah, I think that's a very beautiful question once again. That's wonderful, Kavish, because I think we all are confused and trying to learn at all the steps. Thank you, Kavish. थैंक Yeah, यू मैम। Shubham, over to you. Yeah. So like with this, I would also like to conclude our session. And for those who are asking more details about our next session, I've just sent you a picture, a poster of all the sessions, so you can have a look at that. And the next thing which I would like to mention is that about our next session. So our next session speaker is Miss Pooja Kaushik, who will give us details about all the colleges. You say, for example, if I wish to go for law, or if I wish to go for UPSC, so like what all courses to take and where all to go for. So I think that that session could be helpful. And just to give a little brief about Miss Pooja Kaushik, she has had 8 years of experience in educational institutions, and she's a practicing senior counselor at MET International School. And she's also worked with prominent institutions like Presidium, and she's also a freelancer at MET University, which I think that is very impressive. Uh, just before we conclude this session, we have got also like 1 or 2 more questions, which is that, just a second. Yeah, so like the question is that mainly the first thing that
came in our mind that we take wrong decision and our time was wasted. So I think that the speaker is the listener is trying to ask that how to really not waste our time when in not waste our time in making wrong decisions, and how to make right decisions. So what do you think about that, Mr. Gavish? I'll also answer after Gavish. Okay, Yeah, sure, over to you. आपको अपने आप से बचाने कि आप रॉन्ग डिसीजन ना बनाओ, तो सिंपल सा है, जैसे उन्होंने पूछा था कि जब हम करियर स्टार्ट करें तो उसकी अश्योरिटी कैसे लें कि जो हमारा प्लान बनाया है हमने वो सही है। तो आपको फीडबैक बहुत जरूरी है, कुछ भी प्लान करो उसके लिए फीडबैक पहले लेना बहुत जरूरी है। राइट डाउन करो, डिस्कशन करो, डिस्कशन बहुत, क्योंकि एक एडवाइस भी बहुत बड़ा चेंज ला सकती है आपके लिए। तो जब आपको कुछ फीडबैक मिले और मान लो अगर 10 बंदों ने फीडबैक दिया और आपको लगता है कि यार डिसीजन रॉन्ग हो सकता है, तो उसका हम ये परसेंटेज लेंगे कि 80% लोगों ने कहा कि नहीं यार ये नहीं चलेगा, सिर्फ 20% ने सपोर्ट करा, तो वहां आप समझ सकते हो कि हाँ हमारा डिसीजन रॉन्ग है, क्योंकि हमें फीडबैक हमने नहीं मिला, हमने 10 लोगों से डिस्कस करा। तो उसके लिए फीडबैक लेना बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी करे शुरुआत करो तो। I'll add here, Gavish, very good point you have catered here. But see, आपके पास जितना ज्ञान होता है आप उसके अकॉर्डिंगली हमेशा डिसीजन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमेशा वर्क करते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड, सो नेवर टेक इट कि मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया है, मैंने राइट डिसीजन ले लिया। उस टाइम आपके पास जितनी नॉलेज थी आपने उसके अकॉर्डिंगली लिया। तभी बच्चों काउंसलर्स का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि ये एक डिस्टिंक्टिंग प्रोफेशन बन चुका है कि ऐसी कोई भी समस्या आपको है तो आप कंसल्ट मनी। If you anywhere, you go anywhere, you will find कि अगर कोचिंग सेंटर्स भी खुले हुए हैं, या अब तो ऐसी सिचुएशन कोविड-19 की आई हुई है कि आप लोगों को काउंसलिंग फैसिलिटी इतनी फ्री में प्रोवाइड की जा रही है फ्रॉम NCERT. If I'm belonging to NCERT as a counselor, so I'm also giving it free to all the students. You can consult us where you can get accurate information that this is important and this is the way you have to cater. अगर यहाँ पर आपका कुछ सही वर्क नहीं भी किया तो ये तरीका है, आप आपके ऐसे करके या इसको इस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हो, इसे इम्प्रूव कर सकते हो या इस पे और वर्क कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू टेक दिस डिसीजन। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन, आपने बोला टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। देखो मैं जब भी एक बात बोलती हूँ हमेशा ये बोलती हूँ कि स्मार्ट गोल बनाओ। स्मार्ट गोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और मैं हर जगह बोलती हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑडियंस इसको सुने, क्योंकि स्मार्ट गोल का मतलब है अपनी स्पेसिफिक होना चाहिए। दिन में आपके 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे में से आपको सोना भी है, खाना भी है, बातें भी करनी है, उसमें से भी कुछ सीखा ही है, आपको पता है कि मुझे ये नहीं करना। So always make it a point, start focusing upon these things, and I hope we'll be meeting soon in our next session, which is on best colleges, the right information about the admission procedures for all the streams, for all the students, and you can cater your friends, your parents, whosoever want to have an interest. And I mark my words, you will really like the upcoming session, because we are going to impart you a lot more information. And last but not the least, I would like to thank Gavish for taking out his time, being a younger speaker. This was an intention. We started with such a smiling and a young counselor who is doing a great job in a city called Panipat and doing really good in telling people, advising them, facilitating them about the admissions, how to work in the procedure of preparations in the careers which they are planning for themselves. So thank you, Gavish, for being a speaker for us for Jagriti Foundation, and I wish you all the best. Over to you, Shubham. Yeah, so like I would thank you so much, Ms. Nishtha and Mr. Gavish. So like before ending this webinar, I'd like to mention one very important thing is that if you have got any question to ask from us, you can just directly email to us jagrati01@gmail.com, and you can also follow us on Facebook, Insta, YouTube for further information, and if you wish to stay attached to us. And I would also like to emphasize once again is that you can ask us any question you have related to career, and we would be happy to serve you. So waiting to meet you again in session number 4, and thank you everyone for joining us. Goodbye. So we'll meet you tomorrow at 4 o'clock. Hope you will be there with
your family, with your friends, and you will surely like our sessions. Do give your feedbacks, and we are waiting for it. Thank you, the small team we have, and all the best, everyone. Thank you for being the audience. Bye-bye. Take care.